Hello, my dear friends. Welcome to all. And this is the lecture number 4 of Modern India. तो लास्ट क्लास रे आमे कोन कोन आलोचना करथिले जस्ट ताको आमे टिके रिमाइंड करिवा तो लेक्चर नंबर 1 रे आमे डिस्कशन करथिले कंप्लीट सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ताको आमे एनालिसिस करथिले तब टाइमलाइन आमे देखिथिले कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री देन लेक्चर नंबर 2 रे आमे आलोचना करथिले एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया यूरोपीय माने भारत को काहे के आसिले ओके केमिति आसिले से सब विषय रे आमे आलोचना करथिले भारत को केमिति जड़पथ आविष्कार होला एवं भास्को डा गामा विषय एवं लेक्चर नंबर 3 रे आमे आलोचना करथिले पोर्तुगीज माने प्रथमे जो आसीथिले भारत को तांकर सेटलमेंट सब को जगह रे थिला एवं ସେମାନେ କେମିତି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ କ'ଣ ସବୁ ରିଫର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ଡେକ୍ଲାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଭାରତରେ ଓକେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କର ପତନର କାରଣ ସବୁ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରୋପିଆନ୍ ପାୱାର ବା ନେକ୍ସଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ଭାରତକୁ ଆସିବ ଟ୍ରେଡିଂ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଓକେ এবং ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡଚ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଡଚ୍ କମ୍ପାନୀ କେମିତି ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାର ପଲିସି କ'ଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଡଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ତ Cornelis Houtman okay Cornelis D Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Bantam in 1596 1596 रे प्रथमे आस्थिले ईस्ट आड़क जदि हम देखा किए ना हॉटमैन आस्थिले ठीक अच्छे जे कि फास्ट डचमैन आम कहवा से कौटी आस्थिले ना सुमात्रा आम जो आइलैंड रही इंडोनेशिया है सुमात्रा एंड बंतम जो आइलैंड रही से आस्थिले ठीक अच्छे এবং তাপরে পরে আমার ডচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমার ফর্মেসন করা কেবে না 1602 রে 1602 মସିହାରେ প্রথম ডচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফর্মেসন করা কাহিঁকি না সে সময় আমার যে তা পূর্বরু পর্তুগীজ মানে অলরেডি আসি সারিଥିଲା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ସି ରୁଟ୍ ଡିସ୍କଭରି ସାରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଯେଉଁ ସି ରୁଟ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିପାରିଲେନି ଫାଇନାଲି ଡଚ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ସି ରୁଟ୍ କେଉଁ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଭାରତକୁ ଓକେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସି ରୁଟ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ସେ ରୁଟ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି 1602 ମସିହାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମର କମ୍ପାନୀକୁ ଡଚ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ୍ କରାଗଲା ଭାରତକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ କେଉଁଠି ନା ମାସୁଲିପାଟନମ୍ ଠାରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ 1605 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ମାସୁଲିପାଟନମ୍ ଠାରେ ଓକେ ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏତେ ନଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭିତରେ କେବଳ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା ଭାରତକୁ ଓକେ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ କରମଣ୍ଡଳ କୋଷ୍ଟ ଗୁଜରାଟ ୟୁପି ବେଙ୍ଗଲ ବିହାର ଏସବୁ ଏରିଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଛନ୍ତି ଓକେ 1609 ମସିହାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ କେଉଁଠି ପୁଲିକଟ ଠାରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଓକେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱି ଆର୍ ସୁରଟ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ 1616 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ବିମ୍ଲିପାଟମ୍ ଯେଉଁଟାକି 1641ରେ କାରିକାଲ 1645ରେ ଚିନସୁରା 1653 ତାପରେ ହେଇଗଲା ଆମର ବାରାନଗର କାସିମ ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର ପାଟନା ନାଗାପଟନମ୍ ଓକେ ତାପରେ ଫାଇନାଲି କୋଚିନ୍କୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ 1663ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାରତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଓକେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ହେଲା ୟାକୁ ହଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାକୁ ହଲାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ନା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ହଲାଣ୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୟାର ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ନର୍ଥ ହଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସାଉଥ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେ ଦୁଇଟାର ପପୁଲାରିଟି ଯେହେତୁ ଅଧିକା ରହିଛି ତେଣୁ ୟାକୁ ହଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ହଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି ଇଏ ଆମର 12 ଗୋଟି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇକି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି 12 ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି କିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ହଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସାଉଥ୍ ହଲାଣ୍ଡ ଓକେ ତ ଦେଖିବା ତାପରେ ସେମାନେ ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଗୋ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଥିଲେ ଯମୁନା ଭ୍ୟାଲିରେ ହେଲା ଭାରତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା
आउ कौटी सेंट्रल इंडिया रे हला इंडिगो मैन्युफैक्चर तापर टेक्सटाइल एंड सिल्क फ्रॉम बेंगल हला टेक्सटाइल एवं सिल्क पई से माने को एरिया रे से ट्रेड करथिले बेंगल गुजरात करमंडल ओके आउ गोटे आमर साल्ट फिटर ये आमर करुले कौटी ना बिहार ओपियम एंड राइस ओपियम जोटा कहूँ आम है ओपियम एंड राइस से ट्रेड करते कौटी ना गंगा भैली रे ठीक अच्छे तो यही सबू ट्रेड आम कहीपर अधिका चलता कौन कौन ओपियम राइस साल्ट फिटर तापर होगला आमर टेक्सटाइल जोटा कटन सिल्क ये सब जिनस ओके ता सहित इंडिगो ओके तो से कौन करुले ना इंडिया को मैक्सिमम जिनस से किणिकी नहीं कौन करुले ना आमर जो इंडोनेशिया जो रही सेपटे नहीं बहुत सारा जिनस से बिक्री कर दौले है एवं एमानकर उद्देश्य केबे भी साम्राज्य विस्तार करने उद्देश्य नहीं से केबे आसी नथिले से प्रति से इंटरेस्ट देना एमाने प्योरली आम कहीपर गोटे ट्रेडिंग बॉडी थिले है प्योरली ट्रेडिंग ही माने करुले ओके इन द अर्ली एंड मिडिल 17th सेंचुरी दे वन ओवर द पोर्तुगीज जिते से आसिले तो कंपिटिटर किए थे को मैंने पोर्तुगीज माने ही थे पोर्तुगीज मानकर से धीरे धीरे भारत में कौन पतन आरंभ स्टार्ट हो जाता ठीक अच्छे एवं पोर्तुगीज माने कौन माने प्राधान्य विस्तार कले एवं एमाने गोटे बहुत बड़ पावर हो जाते आम जदि देखा मिडिल 17th सेंचुरी समय है मैंने 1650-60-70 यही समय बेलू भारत में आमर डच माने गोटे बहुत ही अधिक पावरफुल पावर थिले ठीक अच्छे तापर धीरे धीरे कौन है आंग्लो डच रिवाइवल देखा मिली जिते बड़े कौन है पोर्तुगीज मान तो धीरे धीरे डेक्लाइन हो पतन हो भारत में किंतु धीरे धीरे कौन है जड़े पर जड़े आम यूरोपियन कंट्री भारत को आसते इंग्रेज मैंने भारत को आसिले है आम जाचु 1600 मसीह कौन होता 1600 मसीह ईस्ट इंडिया कंपनी फर्मेसन होता डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फर्मेसन होती ठीक अच्छे किंतु यहाँ आसपा टे टाइम लगे है कि वर्ष पर आसने कौ मैंने इंग्रेज मैंने तो जिते इंग्रेज मैंने भारत को आसिले पॉलिसी बहुत डिफरेंट रही है और पोर्तुगीज मैंने यहाँ से कंपिटिशन करने पाखे तो पावर ना जब आम देखा फास्ट फेज रे आम पोर्तुगीज और डच मान भितर डिस्प्यूट देखा देता ठीक अच्छे किंतु एवं मेन कंपिटिटर को मैंने ना इंग्रेज मैंने है आंग्लो फ्रेंच सॉरी आंग्लो डच रिवाइवल देखा मिली है इंग्रेज और डच मान भितर ये कन्फ्लिक्ट देखा मिली ऑब्वियसली निहाती देखा मिले कहीं दी जन जाक कौन कर ट्रेडिंग कर ओके कमर्शियली रिवाइवल टू ब्लडी वारफेयर और धीरे धीरे जो कमर्शियली रिवाइवल था जोटा कि आम ट्रेडिंग जो कंपिटिशन देखा मिलूला यहाँ धीरे धीरे ब्लडी वारफेयर रक्तपात आड़ को गति कला युद्ध हो बहुत बड़ धरणर ओके पुलिकेट वाज द मेन सेंटर इन इंडिया टिल 1690 एवं डच मानकर मेन सेंटर मुख्य सेंटर मान भर पुलिकेट गोटे थिला इंपोर्टेंट एवं 1690 पर्यंत ये मेन सेंटर हो रही है द डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश वन बाय वन इन द लास्ट लेट 17th सेंचुरी लेट 17th सेंचुरी बेड़ू देखा मिलता कौन ना डच माने इंग्रेज मान एगेन्स्ट कंपिटिशन रही पारे है कम्पिट कर पारे तो से गोटे पर गोटे हरई बसिले जो सेटलमेंट थिला इंडिया रे सब हरई बसिले बहुत सारे एरिया सेटलमेंट थिला ठीक अच्छे हरई बसिले जो सेटलमेंट को किए अधिकार कले ब्रिटिश मैंने अधिकार कले है धीरे धीरे भारत को सत्ता लोप पाइबार लगे और से कौन कले ना ईस्ट आड़ को मुहे गले से धीरे धीरे है तो आम देखा तो ये देखु ये डच मान बहुत सारा सेटलमेंट भारत रही है जोटा कि आमर मेन सेटलमेंट गुड़ा ये मार्किंग कराई है ये केवल भारत में नुह है ये आमर बहुत सारा जोटा कि आमर ईस्टर्न साइड आमर जो रहा आमर मालेसिया इंडोनेशिया यही साइड बहुत सारा ट्रेडिंग सेंटर सब रही है ठीक अच्छे जमती गला आमर मालाक्का जाकार्ता आम्बोइना ठीक अच्छे तापर आमर श्रीलंकार रही एपटे आमर सेपटे चीन पाखापाखि पर्यंत चली जाइए ओके तो इंडिया जमी नागापट्टनम केनेनर कोचिन ये सब एरिया मुख्य सेंटर सब रही है डच मानकर ओके तो ये कौन है फाइनाली डच और इंग्रेज मान बहुत अधिक डिस्प्यूट देखा मिली 1623 गोटे इवेंट होता केते मसीह ना 1623 है 1623 मसीह कौटी ना यहाँ मोर जगह थिला आम्बोयरू बोली ठीक अच्छे यहाँ आम इंडोनेशिया ये डच और इंग्रेज मान भर कन्फ्लिक्ट होता है ये कौन होता ना डच माने बहुत सारा इंग्रेज लोक मान मारी देते है जो वर्कर मैंने बहुत जन को मारी देते जापान किसी भी ये मारी देते तो यहाँ जब हम देखा डच और इंग्रेज मान भर जो डिस्प्यूट यहाँ बहुत माने आम कहीपर बहुत अल्प दिन धरी चलता बहुत दिन धरी चलता
ठीक अच्छे कहीं डच और इंग्रेज मैंने भारत को आसबार समय बेसी डिफरेन्स बेस किसी डिफरेन्ट नहीं है जदि डच मैंने आसते के 1602 ठीक अच्छे जो कंपानी फर्मेसन होता तापर से आसती तो इंग्रेज मैंने जो 1608 पर आसला 1608 1615 तापर से स्टाब्लीश होती तो मेन कंपटीशन या भितर होगाटा सुनिश्चित था ठीक अच्छे तो धीरे धीरे से कौन कले ना आमर जोटा 1623 कहली जो गोटे बड़ गोटे डिस्प्यूट गोटे होता कनफ्लिक्ट गोटे होता इंडोनेशिया रे ओके और फाइनाली से 1667 कंप्रोमाइज कले 1667 कौन कले ना इंग्रेज और डच मान भर ये गोटे कंप्रोमाइज होती से कंप्रोमाइज ये कौन करागला जे इंडिया जिते भी सब सेटलमेंट अच्छी से कौन करेंगे ना इंडिया से हटिजे और इंडोनेशिया जहाँ भी सब सेटलमेंट अच्छी इंग्रेज मैंने डच मान को कम्प्लीटली छाड़देवे है यह होता ठीक अच्छे किंतु भारत को आसबार डच मान जो गोटे इच्छा था से रही ठीक अच्छे और से कौन करेंगे ना इन फ्यूचर भारत को आसपा ट्राए भी करेंगे और सक्सेस हो पारे फेलियर हे ठीक अच्छे तो कौन है ना डोमिनेटेड साउथ ईस्ट एशिया स्पाइस ट्रेड है जो आम साउथ ईस्ट एशिया जोटा मुझे कहली इंडोनेशिया गोटे बहुत ही इंपोर्टाट एरिया आम कहीपर स्पाइसेस तो से एरिया को से कौन कले से मेन सेंटर हो गला है भारत नुह किंतु भारत को आसबार जो इच्छा रही है तेणु से कौन कर गोटे इवेंट होमर 1759 है गोटे कहीपर अपरच्युनिटी गोटे मिलला ये कौन होता जे 17 आमर 1757 कौन होता गोटे बड़ युद्ध होता है मन थो आमर जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 मसीह तो 1757 मसीह जो बैटल ऑफ प्लासी होता ये युद्ध में कौन होता ना युद्ध में जड़े थे सिराजुद्दौलांकर जे आमर कौन थे चीफ कमांडर थे मीर जाफर सी कौन करते विश्वासघातकता करते सहित इंग्रेज मान सपोर्ट आसते और मीर जाफर को कौन कराइला ना बेंगल नवाब कर दिया है यहाँ आपको आम पढ़ा ठीक अच्छे 1757 किंतु ये आ गोटे घटना कौन होते बड़े या नवाब कर दिगला तो मैंने पपेट आकार यूज कले पपेट नवाब ये हो गले मैंने कथा किसी चललानी सबकि कथा इंग्रेज मानक ही चलला तेणु सी कौन कले भल लगलानी बुझीपार कि तेणु से समय जेहेतु फ्रेंच माने आमर कौन पावर तो नाला लस होता है कि पावर तो नाला मैंने चाहिए किसी करें इंग्रेज मान से समय तेणु सी कौन करते ना डच मान साहय मागिले किए आम जो मीर जाफर थे है डच मान साहय मागिले और ये गोटे युद्ध होता जोटा को बैटल ऑफ हुगड़ी कहुए बैटल ऑफ बिदार भी कहुए ठीक अच्छे बैटल ऑफ चिनसरा है कहीं बहुत गुड़ा जगार युद्ध होती पर्टिकुलर हुगड़ी में होता है तो बिदारा बोली गोटे जगह भी था चिनसरा भी गोटे जगह अच्छी तो विभिन्न ना या जना जाए ये होता के 1759 और ये हूँ फाइनाल कोलैप्स ऑफ द डच कंपनी इन इंडिया डच मानकर जो गोटे किसी ना किसी छोट मोट जहाँ भी गोटे स्वप्न था है भारत को आसिक से कौन करेंगे जो ट्रेड सेटलमेंट को बढ़ेबे है तो से स्वप्न ये धूलिसात हो गला आम कहीपर द फाइनाल कोलैप्स ऑफ द डच केम विथ देयर डिफीट बाय द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बिदारा और बैटल ऑफ चिनसुरा इन 1759 ओके तो ये मन रखो ये युद्ध कौन होता ना आमर जो थे मीर जाफर थे ये डच मान को सपोर्ट करते ठीक अच्छे द डच आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन एम्पायर बिल्डिंग इन इंडिया और जोटा मुझे ऑलरेडी कही सारी डच माने भारत में एम्पायर बिल्डिंग कर इंटेंशन नहीं कि आसी नथिले बात इंटरेस्ट देखई नथिले ठीक अच्छे तेणु से कौन कले ना भारत में से जहाँ भी सेटलमेंट थी सब छाड़ी छुड़ा कि इंडोनेशिया आड़ को मुहैले ओके और आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिन हूँ कौन ना डच कंपनी हूँ फास्ट गोटे पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी से समय जब देखा जो आम कहूँ स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ओके तार जो आमर ताकू इंट्रोड्यूस करते कौ मैंने ना डच माने ही ओके फास्ट ये गोटे कौन ना पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी जोटा गोटे कहूँ प्राइवेट कंपनी आ गोटे हूँ पब्लिक कंपनी ठीक अच्छे तो पब्लिक कंपनी भितर डिफरेन्स कौन देखो ये गोटे एग्जांपल नौ सपोज 10टी जहाज अच्छी से समय आम सीप्रे ही होता जिते सब ट्रेडिंग है तो 10टी जहाज अच्छी तो 10 जन मालिक अच्छा केते जन अच्छा 10 एटी आमर अच्छा ओनर अच्छा ठीक अच्छे तो पर्सनाल ट्रेड करुँच से समय कौन होता ना समुद्र मानक जो झड़ तफान होता सामुद्रिक झड़ आसाला तो जहाज बुड़ाटा गोटे से समय कमन जिनस और जनक जब गोटे जहाज से बुड़ीगला तो बहुत हेवी माने बहुत लस होता से लोक ही माने पूरा बर्बाद हो बुझीपार तो ये कौन है गोटे से समय पब्लिक कंपनी मीन्स हूँ कौन 10टी जहाज मालिक 10 जन अच्छा तो मैंने कौन करेंगे ना सबको मिसई गोटे कंपनी फर्मेसन करेंगे है
और सबू जहाजर मालिक समस्त सेयार केते रहिबो ना 10% सेयार रहिबो बुझी आगु कौन होता ना गोटे मालिक जड़े होता पर्सनाल इंडिविजुअली एवं कौन होगा ना गोटे कंपनी फर्मेसन करागला है और समस्त सेयार केते रहिबो ना 10% रहिबो सपोज गोटे जहाज भी बुड़ीगला तो जड़े व्यापारी जे अच्छी सी रास्ता को चली आसबनी कि टोटाल तार लस हेनी तार 10% लस हे से समस्त 10% लेखा लस हम बुझे जदि प्रॉफिट है तो से समस्त प्रॉफिट हम तो ये गोटे बहुत बड़ जिनस आम कहीपर है और से समय सबुठ अधिक बड़ कंपनी दुनिया सब बड़ पावरफुल कंपनी थी कि डच कंपनी किंतु तापर आमर जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आसला है फ्रेंच कंपनी आसला से कौन कले बहुत पछे पकईदे परवर्ती समय जब हम देखा ओके तो फास्ट पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनी थी किए ना डच कंपनी और स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ये सबूर आम कहीपर से इंट्रोड्यूस करते फास्ट ओके ओके एवं जोटा आ गोटे कथा जे भारत में एत ध्यान नाला से तेणु इंडोनेशिया आड़ को धीरे धीरे मुव कर ठीक अच्छे तो ये थी आमर डच मान विषय विशेष किसी नाला तेणु ए क्लास टी आम सर्ट्रे गला ठीक अच्छे नेक्स्ट आम आलोचना करवा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विषय में इंग्रेज मैंने भारत को केमी आसिले और केमती कंपनी फर्मेसन कले देन आम देखा फ्रेंच और मेन आमर जो टॉपिक स्टार्ट हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक अच्छे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आमर जो फ्रेंच मान भर जो आम रिवाइलरी हम पुणी देखा आम आपको डानिश कंपनी है डेनमार्क जो कंपनी भारत को आसो देन आगे आम आलोचना करवा ओके तो आजिकार क्लास को आम ये एंड करवा ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बाय बाय एंड टेक केयर।